امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھونس اور دھمکیاں، کینیڈا سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو، کہا اس وقت تہران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں، ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، جے ڈی وینس کو ایران سے مذاکرات کے لیے بھیج سکتا ہوں، ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو سخت رد عمل دیں گے، مجھے لگتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو چھونا ان کے لیے خطرناک ہوگا، اسرائیل ایران پر حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا، ٹرمپ کی تہران سے شہریوں کے انخلاء کی دھمکی پر وضاحتیں، کہا تہران سے شہریوں کے انخلاء کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا امریکی صدر ایران کے زیر زمین فرد جوہری ری ایکٹر تباہ کرنا چاہتے ہیں، دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کا بنکر بسٹر بوم ہی جوہری ری ایکٹر تباہ کر سکتا ہے، JD-57 صرف امریکی B-2 بمبار سے ہی گرایا جا سکتا ہے، اسرائیل کے پاس یہ بوم ہے اور نہ ہی B-2 بمبار طیارہ۔ توڑ میزائل حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہر میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے، 100 سے زائد سپرسونک میزائلز نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا، مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور سٹیشن تباہ ہو گیا، خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں، 3 ملازم ہلاک ہو گئے، اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا، پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ، 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے، جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا، اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے، ایرانی صدر کا پیغام، کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے، ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی کا کہنا ہے نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، اسرائیل نے 3 دہائیوں سے امریکی صدور کو دھوکہ دے کر اپنی جنگیں لڑوائیں، انہوں نے کہا اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے، فرانس، برطانوی اور جرمن وزراء خارجہ کے ایرانی ہم منصب سے رابطے، کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری کی طرف واپس آنے پر زور۔ ہیکرز نے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہی ہیک کر لیا، اسرائیلی میزائل اپنے ہی شہریوں پر گرنے لگے، ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا، ایرانی سائبر حملے میں اسرائیلی ٹی وی چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کیا گیا۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت، رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ، اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو، ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش، طیب اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا، امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی، ایک ساتھ پرواز کرنے والی امریکی فضائیہ کے 3 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ، فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی، رات گئے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے، یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے، امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی، نمیٹس میں 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے، پینٹاگون چیف نے کہا کہ امریکی فوج چوکس اور تیار ہے، امریکہ مشرق وسطی میں اپنی اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔
भारत समेत G7 ममालिक का दोगला मयार, सफाक इसराइल की हिमायत कर दी। एलामिये में कहा, सेहूनी हुकूमत को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता था। दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। तवानाई मंडी का इस्तेहकाम भी यकीनी बनाने पर जोर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप का मुश्तरका एलामिये के मुसव्वदे पर दस्तखत करने से इनकार। अमरीकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। जो शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते वो कुछ दिन शेल्टर में रहने के लिए तैयार रहें। चीनी सफारत खाने की भी अपने शहरियों को जल्द ईरान से निकलने की हिदायत। भारत ने भी ईरान में अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आर्मी चीफ का पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, मार के हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर ओवरसीज़ कम्युनिटी को सराहा। आर्मी चीफ की मुल्की मैशत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज़ की खिदमात की तारीफ। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास। कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज़ नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त ज़रिया है। रेकोडिक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। बानी तहरीक इंसाफ से डियाला जेल में बहनों की मुलाकात। उस्मा खान और नौरीन खान की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक के हवाले से बातचीत, सेहत से मुतालिक और ज़ेर समात अपीलों पर भी गुफ्तगू हुई। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। कहा, तमाम सियासी जमातों ने ईवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की है। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो उसके और भी तरीके हैं। सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FBR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल्स पहले ही बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर एतराज़। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को ख़त्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया है। बलूचिस्तान का 1028 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 682 अरब तक मुख्तस। PSDP के लिए 249 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान शुएब नौशरवानी कहते हैं, गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म कर दी गई। हुकूमती इक़दामात के समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। पंजाब में तारीखी बजट पेश किया। तालीम, सेहत और ज़राअत पर तवज्जो दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबे का तरक्याती बजट कुल बजट का 23% है। सूबे में 12,000 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल हो चुकी। 1100 बसें लाहौर ट्रांसपोर्ट में शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पहली मरतबा बताया अवाम का पैसा कहाँ कहाँ लगा है। बजट में अवाम पर बेतहाशा टैक्स लगा दिया गया। चच्चा वफाक में, भतीजी पंजाब में, जबकि हुकूमत सिंध में भी इत्तेहादी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत से लेवी ख़त्म की जाए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इसराइल को खटकता है। तमाम मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ हैं। हर साल बजट के मौके पर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में तालीम, सेहत, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जारी तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत का सबूत हैं, ना कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है।
जमात इस्लामी इल्ज़ामात के बजाय मुस्बत सोच अपनाएं और सिंध के अवाम के लिए तामीरी सियासत करें। आप चाहते हैं सारे वाक़यात को नज़रअंदाज करके आपको रिलीफ दें। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस सीटों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, हाई कोर्ट गलत, तो अपना भी बताएं। आपने गलती मानी है तो फिर सामना करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़ा ने कहा कि गलतियां कई बार यहाँ हमारी जानिब से ही होती हैं। माजी में 3-2 या 4-3 की कन्फ्यूजन ना फैलाई जाती तो इलेक्शन भी वक्त पर होते। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए, जो फातिमा जिन्नाह मांग रही हैं वही हम मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के पास तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ देने का मुकम्मल इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत। जस्टिस बाबर सत्तार का खत में एतराज़ सामने आ गया। खत के मतन के मुताबिक कहा, बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में मज़कूर तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। मुल्क में 25 जून से मॉनसून एंट्री के लिए तैयार। 2 जुलाई तक मुल्क भर में मॉनसून को पहला स्पेल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी सिंध में आंधी और बारिश मतवक्के। एबटाबाद और कोहिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मतवक्के। सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1295वां उर्स 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महकमा औकाफ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात। उर्स के दौरान महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद का भी अहतमाम।